कौन आएगा? SKV गिटोर में से कौन आएगा? गर्ल्स में से सर मैं आए। एक मिनट। दानिया का तो हो गया था बेटे, बार बार होता, औरों को भी मौका दो ना। सर मैं इफ्रा का हो गया था। इफ्रा जी आपका हो गया। सर मैंने PPT बनाया है। नए बच्चे आने चाहिए सर, जिसका हो गया वो तो नए बच्चे देखते हैं बेटा, कोई नया बच्चा आता है। ओके सर। क्योंकि वही है ना, जिसमें कॉन्फिडेंस है वो तो बोलेगा मैं आ रहा हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल मैं। ठीक है सर। यहाँ पे कॉन्फिडेंस तो देखना, उनकी प्रेजेंटेशन देखनी है, तभी तो स्किल्स हुनर। ओके सर। क्या नाम है? क्या नाम बेटा जी? तिरमनाज। हाँ कौन सा स्कूल से बेटा? चलो आप स्टार्ट करो। गुड आफ्टरनून सर। बेटा कंटिन्यू रखो। ओके सर, प्रेजेंटेशन देना चाहूंगी राजस्थान पे। तो जयपुर इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान स्टेट. It is the largest Indian state by area and the 7th largest by population. The state was formed on 30 March 1949. Distance Delhi to Rajasthan by bus 7 hours 2 minutes. By car 4 hours 59 minutes. By bike 4 hours 18 minutes. Weather condition in Rajasthan: April to June 33 degrees Celsius, October to March 10 degrees Celsius, July to September 22 degrees Celsius. Best time to visit Rajasthan: tourists visit Rajasthan throughout the year, but the best time to visit Rajasthan is during winter months of November to February, when the temperature is not too high. During December and January, there can be a several variation in temperatures during the day and the night. In fact, temperatures are known to drop as low as 0 degrees Celsius and below. Most of the festivals held in winters from November to March are planned as tourist attractions, with visitors coming in from different parts of the world. Attractions in Rajasthan: Jaipur, Bikaner, Jodhpur, Udaipur, Ajmer. Seasons in Rajasthan: summer, monsoon, winter. And languages in Rajasthan: Marwari, Brajbhasha and Rajasthani. Thank you. गुड, बहुत अच्छा बेटा जी। कोई और बच्चा, नया बच्चा जिसने प्रेजेंटेशन अभी तक नहीं दी है? कोई बच्चा है जो प्रेजेंट करना चाहे? कोई नहीं है? चलिए भूमिका। चलो हाँ, भूमिका आप स्टार्ट करो। ट्रांसपोर्ट के बारे में आपको बताना चाहते थे, तो आपने कल दिया था काम। Sir, road transportation is a type of transport using roads. Transport on roads can be roughly grouped into the transportation of goods and transportation of people. In many countries, licensing requirements and safety regulations ensure a separation of the two industries. The industrial civil engineers by the late 18th and early 19th century, new method of highway construction pioneered by the British engineers थे, वो थे जॉन मैडकाफ, थॉमस टैलफोर्ड एंड लॉरेंस मैकडम, एंड बाय द फ्रेंच रोड इंजीनियर थे पियर मैरी जियार। और सर हम इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करें तो इसकी हिस्ट्री थी अर्ली रोड्स की थी। द फर्स्ट मेथड ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट वर horses, oxen, or even humans carrying good over dirt tracks, and often followed the game trail. इसका modern roads थे। Today railway are primarily asphalt or concrete
बोथ आर बेस्ड ऑन मैकडम्स कॉन्सेप्ट, जो मैकडम के कॉन्सेप्ट है उस पे बेस्ड है मॉडर्न रोड्स ऑफ स्टोन एग्रेटेड इन अ बाइंडर asphalt cement of Portland. Cement respectively asphalt is known as a flexible pavement, one which slowly will flow under the pounding of traffic. तो सर रोड ट्रांसपोर्ट के में हम ट्रैम के बारे में बताऊंगी। तो जो ट्रैम ट्रेन दैट रन्स ऑन ट्रैमवे ट्रैक on public urban streets. Some include segments of segregated right of way. The lines of network operated by tram cars as public transport are called tramways और simply tram या street car. हम इसे simply tram या street car भी कह सकते हैं। और सर tram का यूज tramway has been used for two main purpose, for carrying passengers and for carrying cargo. इसकी एडवांटेजेस होती हैं, ट्रैम रिड्यूस कंजेशन इन सिटी सेंटर्स बाय प्रोवाइडिंग पीपल विद अ क्विक रिलायबल हाई क्वालिटी अल्टरनेटिव टू द कार। तो सर हम इसे टाइप ऑफ ट्रैम डिजाइन के बारे में बात करें तो इसके बहुत सारे डिजाइन होते हैं, जैसे आर्टिकुलेटेड और डबल डेकर, तीसरा है ड्रॉप सेंटर, फोर्थ है लो फ्लोर, 5 हो गया सिंगल एंडेड एंड डबल एंडेड ट्रैम्स और रबर टायर्ड ट्रैम्स एक्सेट्रा। सर थैंक यू। वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया ट्राम्स के बारे में, बहुत अच्छा है। और कोई नया बच्चा, न्यू स्टूडेंट? यस सर। बताइए। Good morning, sir and ma'am. I am Reva from SKV Ghitorni, and I am about for Bihar. Bihar is a state in East India bordering Nepal. It is divided by the river Gangas, which floods its fertile plains. Important Buddhism pilgrimage sites include the Bodhi tree in Bodh Gayas, Mahabodhi temple under which the Buddha allegedly meditated in the state capital Patna. Mahavir Mandir temple is revered by Hindus while Sikhs worship at the domed riverside Gurudwara to Takht Sri Harmandir Sahib Ji and tourist places in Bihar. First Bodh Gaya, second Patna, third Nalanda, fourth Vaishali, and fifth Madhubani, sixth Muzaffarpur, seventh Bhagalpur, eighth Rajgir, ninth Pawapuri, 10th Hajipur, 11th Hitamahari, and 12th Lauria Nadhangar. And famous food in Bihar: first litti chokha, second पिरुकिया, थर्ड चना घुमनी, फोर्थ खाजा, सेवंथ केसर पेड़ा, नाइन्थ दाल पिट्ठा, मालपुआ, कढ़ी बड़ी, रसिया, काला जामुन एंड भालू शाही। थैंक यू सर। मुंह में पानी आ गया, इतने सारे चीजों के नाम गिनवा दिए। बहुत अच्छा बेटा सर। और भी है बट इतना नहीं, बहुत है, इतना शॉर्ट टाइम में इतना नहीं सकता। सर 1% और लेके आप शुरू कर दो सर, ये टॉपिक बिल्कुल आसान है, सबको आएगा, ट्रांसपोर्ट सबको समझ में आ रहा है। हाँ, एक नेक्स्ट और लेना चाहेंगे, एक बच्चा कोई भी, और बिल्कुल न्यू स्टूडेंट जिसने अभी तक प्रेजेंटेशन नहीं दिया। आ जाओ बेटा, मोस्ट वेलकम। कौशिक आप देना चाहते हैं तो स्टार्ट करें। सर मुझे स्क्रीन शेयर करनी है। जी जी बिल्कुल।
टीना क्या, हाँ चलो। टीना क्या दिखाना चाह रहे हैं? टीना आप इससे बाहर निकल जाइए, स्क्रीन शेयर करके स्टार्ट करके बिल्कुल बाहर निकल जाइए। जहां आपका जो मैटर है उस फोल्डर में जाइए आप। अब इसको मिनिमाइज कर दीजिए। मिनिमाइज कर दो इसको। अब जहां पर आपका जो मैटर है इसको स्टॉप मत करो, स्क्रीन शेयर को स्टॉप नहीं करना। स्क्रीन शेयर को शेयर करके अब इसको मिनिमाइज कर दो बीच वाले बटन से, और जहां पर आपका मटेरियल है उस फोल्डर को खोल के स्टार्ट करो। यस, एक्सप्लेन कर दो इसको आप। सर हो नहीं पा रहा है। चलो कोई नहीं, वैसे आप बता दो जो आपने थोड़ा बहुत तैयार किया है। चलिए कोई अभी तो स्टार्ट हो गया था, एक बार दोबारा देख लीजिए। हाँ बेटा शो हो रहा है अपना स्क्रीन पे जाके, जहाँ पे प्रेजेंट करना चाह रहे हैं ना वहां पे आप चले जाओ और कर दो। सर वो ओपन नहीं हो रही है। ठीक है, ओपन हो रहा है, दिखाना चाहती हूँ। बेटा ओपन हो रहा है, आपको लग नहीं रहा है। जहाँ पे आपको प्रेजेंट करना है ना वहां पे जाओ और प्रेजेंट करा दो। हाँ बिल्कुल हो रहा है आपका, ये टूरिज्म दिख रहा है मुझे। हाँ, इंटरनल टूरिज्म, इनबाउंड और ये सारा दिख रहा है। चलिए बेटा प्रेजेंटेशन दीजिए। सर मे भी हो सकता है जो वीडियो बच्चे ने बनाई है ना पीपीटी वो ओपन नहीं हो रही हो। चलो ठीक है, नेक्स्ट कोई हो तो वो कर दे। बेटा ग्रुप में शेयर कर दीजिए। सोमी आप एक दिखा देना ये वाली पीपीटी, ये फिर प्रेजेंटेशन दे देंगे बच्चे। टीना ग्रुप में शेयर कर दो, जो ओजीटी वाला ग्रुप है ना। ओके सर मैं एयरलाइन ट्रांसपोर्ट के बारे में बताना चाहूंगी थोड़ा। जी सौम्या जी। Myself Soumya. The airline in India are flew by the fast growing business of the civil aviation in India. As of November 2018, India's domestic airline market is ranked as the third largest in the world and is expected to reach top rank in the next 10 to 15 years. इंडिया की बेस्ट एयरलाइंस हैं विस्तारा, इंडिगो, एयर इंडिया, स्पाइस जेट। थैंक यू सर। So let's we start today's topic। आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं हमारा
कल हमने ट्रांसपोर्ट किया था। देखिए बेसिक जो नीड्स होती हैं, जब आइटिनरी प्रिपेयर करते हैं या एक टूरिज्म टूर पैकेज हम सेल करते हैं, उसमें सर्विसेज जो हम ऐड करते हैं, तो उसमें ट्रांसपोर्ट है, अट्रैक्शन है, ट्रांसपोर्ट है, एकोमोडेशन है, ये चीजें हमारी बेसिक होती हैं। और बाकी चीजें एडिशनल या एमिनिटीज में हम उनको काउंट करते हैं। तो आज हम इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे एकोमोडेशन। एकोमोडेशन क्या होती है? एकोमोडेशन एक ऐसा प्लेस है जहां पर टूरिस्ट जो है एक शेल्टर और अपने लिए खाने के लिए खाने की चीजें यानी कि फूड एंड शेल्टर एक ही प्लेस पर उसको फाइंड आउट मिलता है या प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो दैट इज कॉल्ड द एकोमोडेशन। तो यहाँ पर एकोमोडेशन को हम क्या कहेंगे? एकोमोडेट होता है। एकोमोडेट और हॉस्पिटैलिटी दो शब्द हैं यहाँ पर, और दोनों एक ही मीनिंग से बने हैं। हॉस्पिटैलिटी का मतलब होता है एक दूसरे की मदद करना, और एकोमोडेट करना किसी को कोई परेशानी ना होने देना, उसको वो घर जैसा माहौल, एनवायरमेंट माहौल प्रोवाइड कराना, वो सब चीजें उसको देना जो चीजें उसको घर में मिलती है या वो चीज बाहर जा करके उसको घर की याद ना आए, ऐसी कोशिश की जाती है। तो दैट इज कॉल्ड वेयर टूरिस्ट कैन फाइंड फूड एंड शेल्टर provided at a platform and he pays something he pays for that something। तो इसमें हम इसकी कैटेगरीज के अकॉर्डिंग जब लेते हैं एकोमोडेशन में, तो इसके डिफरेंट टाइप की इसके अंदर जो है आपके होटल्स हैं, मोटल्स हैं, यूथ हॉस्टल्स हैं, अपार्टमेंट्स हैं, रिजॉर्ट्स हैं, ढाबाज हैं, 5 स्टार ढाबाज हैं, इसमें रेस्टोरेंट भी हम बोल सकते हैं। तो इनकी जो एक कैटेगरीज होती हैं हमारे लिए, देखिए एक आम आदमी के लिए सारे के सारे जहाँ पर खाने के लिए कुछ रहने के लिए जगह मिल जाती है, तो उसके लिए सारे होटल्स हैं। हम रोड पर चल रहे हैं, हमें भूख लगी और अच्छी सी जगह देखी हमने, और वहां पर लिखा हुआ फलाना फलाना होटल, ठीक है, आइए खाइए एंजॉय कीजिए, या अपना होटल XYZ बहुत सारे उसके होटल नाम लिख देते हैं। तो हम सोचते हैं कि ये होटल है और हम वहाँ खाना खा के चलते हैं या थोड़ी देर रेस्ट करके चलते हैं। तो वी थिंक हम किसी को बताते हैं तो कहते हैं कि हमने होटल पे खाना खाया। एक्चुअल में वो होटल्स होते नहीं है, वो या तो आपके रेस्टोरेंट मिलेंगे, या आपको रिजॉर्ट मिलेंगे, मोटेल्स मिलेंगे, या वो ढाबाज मिलेंगे। तो इनकी कैटेगरीज के बारे में मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूंगा, बताना चाहूंगा। और सबसे पहले मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि एक FSRAI यानी कि फेडरेशन ऑफ होटल रेस्टोरेंट है, एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ये है जो इनकी कैटेगरीज या इनके रूल्स रेगुलेशन को सेट करती है, रूल्स रेगुलेशन बनाती है कि होटल्स के रूल्स क्या होंगे, मोटेल्स के लिए क्या रूल्स होंगे, रेस्टोरेंट के लिए क्या रूल्स होंगे, रिजॉर्ट्स होगा उसके क्या रूल्स होंगे। तो एक फेडरेशन है इनका जो कि हर एक एकोमोडेशन या हॉस्पिटैलिटी यूनिट जो है उसके साथ अटैच्ड होती है। FSRAI इसका फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ होटल्स रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो इसके साथ ये जुड़े होते हैं। अब हॉस्पिटैलिटी का मैंने बता दिया, हॉस्पिटैलिटी का मतलब होता है एक दूसरे की मदद करना, सहायता करना। अब हम बात कर रहे थे कि होटल्स की कैटेगरीज, प्राइस और उनके बारे में, या जैसे हमने खाना एग्जांपल दिया कि हमने खाना खाया और हमने कहा कि होटल में हमने खाना खाया, तो वो क्या है वो, उसके बारे में हम बात करेंगे थोड़े से। लेकिन मैं थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना चाहूंगा। पहले हिस्ट्री में जाना चाहूंगा तो एक क्वेश्चन है, बच्चों से पूछना चाहूंगा कि होटल और मोटल में डिफरेंस क्या है? मोटल और होटल। सर होटल में रह सकते हैं लेकिन मोटल में रह नहीं सकते।
सर होटल में मतलब रूम होते हैं रहने के, उनमें खाने वगैरह का नहीं होता, और मोटल में जो है नहीं, हम होटल में खाना खाने वगैरह वगैरह खा का सकते होता है, हैं। लेकिन उसमें हम रह नहीं सकते। जैसे मोटल में हम रुक सकते हैं 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, मोटल में नहीं रुक सकते। सर सर मोटल यस रोड पे सर, यही होता है। कहना चाह रही हूँ। गुड गुड गुड, अच्छी नॉलेज है सर बच्चों को। तो उसको चलो और थोड़ा एक्चुअली सा क्या हम ना, आगे मोटर मोटर जो है ना, मोटर सबसे हुआ है। जैसे मोटर हमारे पास, जैसे कोई भी कार या जो भी हम लोग ट्रेवलिंग करके अपने मतलब व्हीकल से जाते हैं ना, तो वो उसको मतलब एक पार्किंग करने के लिए जो भी जहाँ पे भी अरेंजमेंट होते हैं ना, उसको हम लोग मोटल बोल देते हैं। बलवंत सर सही बोल रहा हूँ ना मैं? जी सर, जी सर। हाँ हाँ, यही है मोटल, जो रास्ते में होते हैं बड़े बड़े राजमार्गों पर। हाँ, तो वहाँ पे पार्किंग की फैसिलिटी थोड़ी देर रेस्ट कर सकते हैं हम वहाँ पे, कुछ यस इस यस, तरीके का। वहाँ कुछ खाने पीने का नहीं होता है, मतलब कोई जरूरी नहीं, लेकिन होटल में आपके सारे अरेंजमेंट होते हैं जो आपको एक तरीके से बहुत सारी यस फैसिलिटीज सर। होती हैं। चलो ठीक है सर, कंटिन्यू। सर वो हाईवे पे होता है। ओके। गुड। तो इसमें हम थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना चाहेंगे। आदि मानव जो है पहले क्या करता था, फूड गैदरर था, वो फाउंडर था, फिर गैदरर था, फिर फूड प्रोड्यूसर हुआ। तो इन चीजों में भी हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं हॉस्पिटलिटी थी, क्योंकि वो खाने के लिए, अपने खाने को सर्व करने के लिए वो दूर दूर निकल जाता था, और उसको जहाँ पर पानी मिलता था और उसको शेल्टर मिल जाता था वो रहता था। फिर देन वो वहां के फल फूल कंदमूल या शिकार के ऊपर डिपेंड रह करके जब तक उसको मिलता था वो यूज करता था, उसको खाता था और आगे चल पड़ता था। तो वो एक टाइप का क्या था, एक एकोमोडेशन ही थी। और ऐसा नहीं था कि एक ही आदि मानव की जब हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में यही आता है, तो माइंड सेंटिक का होता है कि एक ही आदमी होगा। ऐसा नहीं था, उसकी टीम होती थी, बहुत सारे ग्रुप्स होते थे, और एक दूसरे ग्रुप के साथ मिलके लोग जो है वो फूड को गैदर करते थे, फूड को गैदर करते थे, और वो एक दूसरे के साथ शेयर भी करते थे, हेल्प भी करते थे। तो उस टाइम से लेकर के धीरे धीरे एकोमोडेशन की जो है फॉर्म्स जो है वो चेंज होने लगी। लोगों को पहले खाना नहीं मिलता था, शेल्टर मिल जाता था। इंग्लैंड में इसकी शुरुआत हुई थी। लोगों को जो है घरों में ठहराया जाता था। एक रूम होता था, कूमर रूम होता था, बड़ा सा रूम होता था, 4-5-6 बेड लगा दिए जाते थे, एक पंखा टंगा होता था, एक फैन होता था, और उसमें उनको सिर्फ एक बेडशीट दी जाती थी और वो उससे सो जाते थे और उनसे कुछ ले लिया जाता था। लेकिन वो सेफ्टी के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग वो सही नहीं था। फिर उसमें चेंज आते गए, लोगों को ये लगने लगा कि हम एक बार इन्वेस्टमेंट करते हैं कुछ, और वो इन्वेस्टमेंट करने के बाद हमें डेली इनकम आती है, तो उसमें चेंज करना शुरू कर दिया। किसी ने फूड भी प्रोवाइड कराना शुरू कर दिया, किसी ने 4 लोगों की बजाय 2 लोगों को रूम देना शुरू कर दिया, किसी ने उनका सामान को सेफ रखने के इंतजाम करने लगे। तो इस तरह से एकोमोडेशन या हॉस्पिटलिटी सेक्टर में धीरे धीरे करके चेंज आते गए, और वो एक प्रोफेशनल या कमर्शियल मोड में आ गई, कमर्शियल या उसमें प्रोफेशनल मोड में आ गई। तो इसमें क्या है, देखिए पहले हमारे यहाँ इंडिया के अंदर एक ट्रेडिशन रहा है, तो पहले कभी कोई खाने का किसी से कोई पैसा नहीं लेता था, पानी पिलाने का भी कोई पैसा नहीं लेता था। अभी मुसाफिर जाते थे तो रास्ते में किसी गांव में गांव को देख के ठहर गए, वहां पर उनको खाना और रहने की जगह मिल जाती थी। कुछ सामान उनके पास होता था, तो वो सामान की कोई गारंटी नहीं थी कि वो सेफ रहेगा या चोरी हो जाएगा, तो वो चोरी भी हो जाता था बहुत सारा सामान, कई तरह के नुकसान भी हो जाते थे। तो इस तरीके से लोगों में जो है एकोमोडेशन की या हॉस्पिटलिटी की हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। हाँ बोलो भैया, आवाज आ रही है अब? बोल। तो इस
इस तरह से उनके अंदर जो है ना एक दौड़ सी चल पड़ी। आज के टाइम में आप देखेंगे बेड एंड ब्रेकफास्ट एक सिस्टम चला हुआ है इंडिया के अंदर भी। वो बेड एंड ब्रेकफास्ट जो है 200 साल पहले या 250-300 साल पहले यूरोप की कंट्रीज में डेवलप हो चुका था। अब धीरे धीरे हम बात करते हैं तो इंडिया के अंदर सबसे पहले टाटा ग्रुप ने 1903 के अंदर ताज होटल मुंबई के अंदर ओपन किया था। 1903 में जो ताज होटल मुंबई है, बहुत सारे बच्चों ने पिक्चर दिखाई होगी। अभिषेक सर एक बार ताज होटल की पिक्चर दिखाना बच्चों को इमेज के हम। ताज होटल सर, ताज होटल मुंबई में है। एक मिनट। 1903 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी और टोटली फंक्शनिंग जब हुई तो 1904 में इसकी फंक्शनिंग स्टार्ट हो गई थी। प्रॉपर एक चैनल के साथ या प्रॉपर एक कह सकते हैं मैनेजमेंट अरेंजमेंट के साथ 1908 से इसने अपना काम करना शुरू कर दिया था। अब इसके बाद हाँ ये देखिए, ये ताज होटल की इमेजेस आपको दिखाई दे रही है। ताजमहल पैलेस भी इसको बोलते हैं, ताज होटल के नाम से भी इसको जानते हैं। और इंडिया में पहला होटल है जो कि टाटा ग्रुप जो थी जमशेदजी टाटा उनके द्वारा शुरू किया गया था। और ये टोटली जो है 5 स्टार स्टार्टिंग से ही 5 स्टार इसकी फैसिलिटीज रही। आज ये सुपर डिलक्स में कन्वर्ट हो चुका है और एक चेन होटल्स भी है ये, ठीक है। वर्ल्ड वाइड चेन होटल्स हैं इसकी। इंडिया के साथ साथ बहुत सारी कंट्रीज में भी इसके नाम से होटल्स ओपन हैं। अब इसके बारे में हम बात करते हैं, होटल्स के बारे में बात करेंगे तो होटल्स की डिफरेंट टाइप्स की कैटेगरीज होती हैं, ठीक है। होटल्स में देखिए एक तो होते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर में और एक होते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर जितने भी 5 स्टार होटल्स हैं या फर्स्ट क्लास होटल्स हैं वो सारे के सारे आते हैं। 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार डिलक्स, सुपर डिलक्स और 7 स्टार होटल। इनकी सर्विसेज जो है वो बहुत महंगी भी होती हैं और टोटली लग्जरियस होती हैं। और इनमें से जो ऑर्गेनाइज सेक्टर के जो होटल्स होते हैं वो चेन होटल्स होते हैं। जैसे कि इंडिया में हम बात करें, ताज होटल है, ओबराय होटल है, लीला होटल्स है, एक का नाम और मैं भूल गया। तो ये होटल्स जो है चेन होटल्स हैं। चेन होटल्स का मतलब होता है कि इनकी बहुत सारी ब्रांच, मेन ब्रांच के साथ इनकी हर सिटी के अंदर, देश के हर सिटी के अंदर या मेट्रो सिटीज के अंदर इनकी ब्रांचेज होती हैं। और जो मेन ब्रांच से इनको हयात रेजिडेंसी की बात करूं तो हयात रेजिडेंसी भी जो है चेन होटल्स में आता है। तो ये नेशनल और इंटरनेशनल चेन होटल्स होते हैं। तो इनमें क्या होता है, जो मेन फंक्शनिंग मेन ब्रांच जो होती है वहां से जो रूल्स या रेगुलेशंस इनके फॉलो चलते हैं उनको वही उसी के अकॉर्डिंग काम करना होता है और उसी के अकॉर्डिंग वो काम करते हैं। उसके बाद है रेस्टोरेंट की हम बात करते हैं। तो रेस्टोरेंट एसी और नॉन एसी होते हैं। रेस्टोरेंट में भी ये होता है कि रूम जो है हमें खाने के लिए फूड एंड बेवरेजेस सर्विसेज हमें मिल जाती हैं। रेस्टोरेंट में बार सर्विसेज भी मिल जाती हैं। दूसरे डांस पार्टी या इस तरह की हम अरेंजमेंट भी रेस्टोरेंट के अंदर कर लेते हैं, लेकिन वहां पर हमें स्टेबल नहीं होते, हम स्टे नहीं कर सकते हैं। तो ये रेस्टोरेंट का होता है। अभी हम मोटेल्स की बात कर रहे थे, बच्चों ने बहुत अच्छा बताया कि मोटेल्स क्या होते हैं। मोटेल्स आर दी ऑन हाईवेज साइड सिचुएटेड होटल। दीज आर दी मिनी होटल्स एंड ये इनको हम कह सकते हैं कि मोटेल्स आर द सब्स्टिट्यूट ऑफ मेन होटल।
ये जो मोटेल्स हैं ये जो मेन होटल्स हैं जिसको हम होटल बोलते हैं उनका सब्स्टिट्यूट है। यहाँ पर इनको फूड, बेवरेज, पार्किंग, एंटरटेनमेंट और शॉर्ट स्टे, इसको हम बोलते हैं शॉर्ट स्टे। शॉर्ट स्टे फैसिलिटीज जो है अवेलेबल होती हैं। शॉर्ट स्टे अवेलेबिलिटी में क्या होता है कि आदमी 2-3 घंटे रेस्ट कर सकता है। वहां पर ओपनली जो है ओपन ग्राउंड में जो है इनके लिए स्टे की फैसिलिटी होती है। जैसे कि लाइक चारपाई होती है, सब नीचे होते हैं, वहां पर झूले लगे होते हैं, चेयर्स लगी होती हैं और बच्चों के लिए थोड़ा सा खेलने के लिए पार्क टाइप का एरिया भी बनाया जाता है। जैसे कि इस इमेज में आप देख रहे होंगे ये कार खड़ी है, कार के पीछे जो है थोड़ा सा पार्किंग एरिया भी दिखाया गया है और थोड़ा सा एंटरटेनमेंट का वो भी दिखाया गया है। तो पार्किंग एरिया के साथ साथ जो है पार्क भी है, वहां पर एंटरटेनिंग के थोड़े से साधन भी होते हैं और पीने के पानी की फैसिलिटीज, टॉयलेट वगैरह की फैसिलिटीज वो सब होती है वहां पर। तो मोटेल्स के अंदर ये होता है। मोटेल्स को जो है कब यूज किया जाता है, होटल्स में कब इनको कन्वर्ट किया जाता है मोटेल्स को होटल में। यदि सर्विसेज होटल्स द्वारा सर्विसेज फुलफिलमेंट नहीं हो पाती हैं या इन कोई इमरजेंसी कंडीशंस हैं और मेन होटल्स जो है वो अवेलेबल नहीं है, तो मोटेल्स आर कैन बी कन्वर्टेड इनटू होटल्स या एकोमोडेशन फैसिलिटी। तो वहां पर उनको रूम्स, ठहरने के लिए रूम्स भी दिए जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मोटेल्स के अंदर ठहरने के लिए रूम नहीं होते हैं, बट वी कांट स्टे एट नाइट। नाइट में स्टे नहीं कर सकते हैं, ये उसका रूल होता है। FSRI के अकॉर्डिंग उसके नियम में होता है कि नाइट में जो है फुल नाइट के लिए उसकी हम बुकिंग्स नहीं कर सकते हैं। शॉर्ट टाइम के लिए 2 आवर्स, 3 आवर्स, मैक्सिमम 4 आवर्स के लिए हम वहां पर स्टे कर सकते हैं। फिर है रिजॉर्ट है। रिजॉर्ट क्या है, वो नेचुरल साइट से आपको मिलेंगे। नेचुरल साइट जो होती है जैसे कि पहाड़ी एरिया है, समुद्री एरिया है, बीच का एरिया है। तो इस लोकेशन पर आपको जो होटल्स, 1 स्टोरी होटल्स जो मिलते हैं, क्या ढाबा हम कह सकते हैं, वो मिलते हैं। तो वहां पर आपको उसको रिजॉर्ट करते हैं और उसके नेचुरल व्यू जो है आपको दिखाई देता है और नेचुरल व्यू को आप वहां से फुली सीन कर सकते हैं। आसपास में जो है उसके जहाँ पर भी आप देखेंगे तो गार्डन होगा और वो सारी फैसिलिटीज होंगी आपके लिए। स्विमिंग पूल भी कहीं कहीं बना दिया जाता है, चेयर्स भी लगा दी जाती है, सिंगल चेयर्स भी लगा दी जाती हैं और ग्रुपिंग चेयर भी लगा दी जाती है। वहां पर हम फूड एंड बेवरेज को भी इंजॉय कर सकते हैं। सी फूड रिजॉर्ट के अंदर जो है ना सी फूड ज्यादातर प्रेफर किया जाता है, मोस्टली एट द प्लेसेस ऑफ द बीचेस। जो बीच हैं उनके ऊपर सी फूड को प्रेफर किया जाता है। फिर आता है हमारा यूथ हॉस्टल। यूथ हॉस्टल्स क्या होते हैं, दे आर दी बिल्डिंग्स ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट होती है उनको वो कुछ बिल्डिंगें होती हैं, हॉस्टल्स होते हैं जो युवाओं के लिए बनाए जाते हैं। और युवाओं के लिए क्यों बनाए गए हैं, जो यूथ होता है, यूथ है वो अपने कल्चर को, अपने देश के कल्चर को, उसके लिए कुछ बढ़ाने का काम करता है और रिसर्च करते हैं। और दे हैव विजिटेड वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक जगह से दूसरी प्लेस पर वो जगह पर जाते हैं। तो उनको स्टे के लिए एक प्लेस प्रोवाइड कराया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, यूथ हॉस्टल्स बोलते हैं। यूथ हॉस्टल्स नेवर प्रोवाइड द फूड सर्विसेज। यूथ हॉस्टल कभी भी जो है वो फूड प्रोवाइड नहीं कराता है। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, उसका यही होता है कि वो फूड नहीं प्रोवाइड कराता है। फूड अरेंजमेंट जो टूरिस्ट होते हैं या जो वहां पर ठहरने वाले होते हैं, कस्टमर्स होते हैं, वो अपने आप इसकी अरेंजमेंट करते हैं। फिर हम बात करते हैं ढाबाज की, हम बात करेंगे। तो ढाबाज क्या होते हैं, ये भी एसी और नॉन एसी होते हैं, ये भी रोड किनारे होते हैं, ये कहीं पर भी होते हैं। ये इनकी लोकेशन जो है वो सिटी के अंदर भी होती है, सिटी के आउटसाइड में भी होती है।
और इनका साइज जो है वो छोटा छोटा से छोटा ही होता है मैक्सिमम, लेकिन इनका साइज जो है वो 2 रूम या 3 रूम के अकॉर्डिंग भी बना दिया जाता है। तो ये ढाबाज है। यहाँ पर ढाबाज में आपको चाय वगैरह, चाय, स्नैक्स, स्टार्टर एंड फूड सर्विसेज भी अवेलेबल हो जाती हैं। ये भी ढाबा जो है एसी और नॉन एसी ढाबाज हैं। आपने सुखदेव का ढाबा सुना होगा कि जो 2016 में बहुत फेमस हो गया था, सुखदेव का ढाबा, जो कि आपके सोनीपत में जाते हैं। मुरथल एक जगह है, मुरथल मुरथल पर रोड के किनारे ही है, लेफ्ट साइड में। इधर से जाते हैं, दिल्ली से जाते हैं तो उसको हम सुखदेव का ढाबा के नाम से जानते हैं। तो और दीज आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ दी accommodation or hospitality who are provide the food and shelter, फूड और शेल्टर प्रोवाइड कराते हैं। अब हम बात करते हैं होटल्स की। देखिए, वैसे तो होटल्स की कैटेगरीज की हम बात करें तो ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में चले जाते हैं। उनको स्टारिंग के अकॉर्डिंग भी हम वो कर सकते हैं, स्टारिंग के अकॉर्डिंग भी हम उनकी कैटेगरी बता सकते हैं। उनकी लोकेशन के अकॉर्डिंग उनकी कैटेगरी की हम बात करते हैं। उनके साइज के अकॉर्डिंग हम उनकी बात करते हैं। तो साइज का मतलब क्या होता है, जो सिटी के अंदर होटल्स होते हैं वो 3 स्टार होटल्स होते हैं। 4 स्टार होटल्स जो है वो सिटी में भी होते हैं, लेकिन वो ओपन एरिया में होते हैं। और 4 स्टार, 5 स्टार और 5 स्टार डीलक्स जो होटल्स होते हैं वो आउटसाइड द सिटी, शोर, ऑन द शोर ऑफ द सिटी। सिटी के जो शोर होते हैं वहां पर होती है, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर पार्किंग एरिया भी मस्त होता है। फिर शॉपिंग मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी इसके अंदर होता है, रेस्टोरेंट भी होता है इसके अंदर, बार भी होता है। तो कई चीज जो है इसके अंदर ऐड कर दी जाती है और उसके साइज के अकॉर्डिंग जो है उस होटल की कैटेगरी की जाती है। फिर उसको हम 5 स्टार होटल्स भी बोल सकते हैं, या उसको हम क्या सुपर डिलक्स होटल्स भी हम बोल सकते हैं। और उनकी फैसिलिटीज के अकॉर्डिंग, फैसिलिटीज का मतलब क्या होता है, उनके अंदर रैक सिस्टम भी होता है, स्कैनिंग मशीन्स भी लगी होती हैं। इस तरह से वो सारी की सारी मशीन्स या स्कैनिंग मशीन जो है टूरिस्ट का पूरा रिकॉर्ड रखती है कि वो किस तरह कब आया, किस स्टेट में आया, कितना टाइम का उसने वो किया। फिर इनकी लग्जरी और सेमी लग्जरी सर्विसेज होती हैं। फिर लॉक सिस्टम भी इनके अंदर होता है, जो हम अपना लग्जरी सामान लेके जाते हैं। प्रीशियस जो वैल्यूज या ऑर्नामेंट्स वगैरह कुछ हमारे होते हैं, तो लॉक सिस्टम भी वहां पर होता है। लॉकर सिस्टम जिसे बोलते हैं, रैक सिस्टम, लॉकर सिस्टम ये होता है। उसके बाद डिजिटल सिक्योरिटी होती है, जो डोर ओपन वगैरह होते हैं वो डिजिटल है, आजकल के उसमें डिजिटल है। या कार स्क्रैपिंग, ओपन डोर ओपनिंग सिस्टम है। तो ये हाई फाई टेक्नोलॉजी यूज की जाती है। एस्केलेटर्स यूज किए जाते हैं होटल्स के अंदर। 5 स्टार और जो डिलक्स है या 7 स्टार होटल्स जो है उनके अंदर जो है एस्केलेटर की टेक्नोलॉजी भी जो है वो यूज की जाती है, लिफ्ट भी यूज की जाती है। तो इस तरह की सर्विसेज जो है होटल्स में की जाती है। आज हम कह सकते हैं हॉस्पिटलिटी या एकोमोडेशन जो सर्विसेज हैं वो सिर्फ एक खाने तक सीमित नहीं रह गई है। वहां पर वो हमें एहसास करा देते हैं कि एक घर के रूम से निकलकर जब हम एक होटल के रूम में आते हैं तो वहां पर भी एक अलग दुनिया होती है, एक अलग तरह का नजारा होता है। ठीक है। अच्छा, होटल का मतलब क्या होता है? होटल का मतलब होता है अ होम अवे फ्रॉम होम। एक घर, ऐसा घर जो हमारे घर से दूर है लेकिन वो घर के जैसा ही है। वहां पर हमें एहसास होता है कि हम एक घर से निकल के दूसरे घर में आते हैं, तो हमें वहां पर इतनी फैसिलिटी, सर्विसेज हमें प्रोवाइड करा दी जाती है कि हमें अपने घर की याद नहीं आती है, या हमें अपने घर घर के एनवायरनमेंट के बारे में एहसास नहीं होता है। तो ये क्या है, यहाँ पर इन होटल्स की कैटेगरीज के अकॉर्डिंग जब हम बात करते हैं तो इनके रूम्स की जो सर्विसेज हैं और इनके रूम्स की जो एक कॉस्ट होती है पर नाइट के हिसाब से, तो वो लगभग 1 लाख रुपए तक या 1 लाख रुपए से ऊपर तक भी होती है पर नाइट के हिसाब से, जिसमें बहुत बड़े सेलिब्रिटीज आते हैं, जैसे कि ओबराय होटल है, अशोका होटल है दिल्ली के अंदर,
ताज होटल्स हैं। इस तरह के होटल्स में इनका पर नाइट का जो किराया जो है वो 50,000 60,000 रुपए से लेकर के और 1 लाख रुपए तक भी होता है। और उसके अंदर रूम सर्विसेज जो है वो उसी तरह की प्रोवाइड करा दी जाती है, जैसे कि रूम के अंदर वाईफाई है, वाईफाई कम्प्लीमेंट्री होता है सबके लिए, वाईफाई सर्विस वो प्रोवाइड कराते हैं, टी मेकर्स है, टीवी है, बेड्स हैं, वॉशरूम है, टैब बाथरूम है। तो इस तरह की फैसिलिटी हाई फाई लेवल की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली जो सर्विसेज हैं उनको वो प्रोवाइड सर जैसे रूम से व्यू बहुत अच्छा आता है, बाहर का नजारा बहुत अच्छा आता है। यस यस, वो रूम की कैटेगरीज हैं और रूम उसके मील प्लान के अकॉर्डिंग होते हैं। अब जब हम बात करें थोड़ा सा, मैं दूसरे टॉपिक में लेके जाऊंगा, जब हम बुकिंग करते हैं किसी होटल्स को, हम जब बुक करते हैं तो हम वहां पर होटल की कैटेगरी के साथ साथ होटल के रूम की भी बुकिंग करते हैं। जैसे रूम बुकिंग क्या मतलब क्या होता है, जैसे हमने सिंगल रूम का मतलब होता है 1 बेड फॉर 1 पर्सन, ठीक है। तो ये इसको हम बोलते हैं सिंगल रूम। अब हम सिंगल रूम कर रहे हैं विद फूड मील प्लान के साथ। मील प्लान क्या होगा, मील प्लान होगा हमारा MAP, यानी कि मॉडिफाइड अमेरिकन प्लान। इसके बारे में मैं बताना चाहूंगा। देखिए, एक होता है AP जिसको हम अमेरिकन प्लान बोलते हैं। अमेरिका वाले भैया, ये मान के चलो अमेरिका वाले बहुत भूखड़ है, सारा खाते हैं या तीनों टाइम खाते हैं। वो ब्रेकफास्ट भी करते हैं, लंच भी करते हैं और डिनर भी करते हैं, जिसको हम AP बोलते हैं। फिर उनको समझाया गया कि भैया इतना खाना अच्छा नहीं होता है, कभी कभी थोड़ा पेट को रेस्ट भी देना होता है। थैंक यू सर, थैंक यू। तो थोड़ा पेट को रेस्ट भी देना होता है यार, एक टाइम का खाना तो स्किप करो। तो उसको उन्होंने नाम दे दिया मॉडिफाइड अमेरिकन प्लान, यानी कि ब्रेकफास्ट प्लस ब्रेकफास्ट में बफे होता है। बफे मतलब खूब खाओ, कितना भी खाओ, जिसके अंदर अमेरिकन और CP यानी कि कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट भी इसमें दिया जाता है MAP में, मॉडिफाइड अमेरिकन प्लान। इसमें बफे में होता है यानी कि कितना भी खाओ, और कॉन्टिनेंटल प्लान ब्रेकफास्ट दिया जाता है प्लस लंच और डिनर में से एक चूज करना होता है, या तो भाई आप लंच ले लो या आप डिनर ले लो। तो लोग जो है अपने सुविधा अनुसार जो है कई लंच सेलेक्ट कर लेते हैं या फिर डिनर सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब वो मान लो कहीं बाहर निकलते हैं, किसी को साइट सीइंग के लिए जाना है, तो वो क्या करेगा, वो अपना ब्रेकफास्ट किया और निकल गया, फिर वो वापस सीधा शाम को आता है, वो डिनर ले लेता है। लंच या हल्का फुल्का ब्रंच वगैरह या चाय कॉफी कुछ वो बाहर ले लेता है थोड़ा सा, तो उससे लंच का वो बच जाता है। हाँ, एक चीज और मैं बताऊंगा, मान लो कि हम पैकेजेस में जब ये सब चीजें देते हैं और लंच कस्टमर या टूरिस्ट बाहर करता है, होटल से बाहर करता है, तो उसका खर्चा टूरिस्ट खुद देगा, वो उससे अलग होगा, एक्सक्लूसिव होगा, वो इंक्लूसिव नहीं होगा। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर होता है MAP हो गया, AP हो गया, फिर CP कॉन्टिनेंटल प्लान, यानी कि ब्रेकफास्ट, कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट बता ही दिया मैंने, जिसके अंदर क्या होता है, जिसके अंदर भाई आपका दूध, बटर, ब्रेड, सलाद, इस तरह की चीजें होती हैं, यानी कि अनकुक्ड फूड होता है, ठीक है। एक होता है अमेरिकन ब्रेकफास्ट में अंडा या फिश, चिकन, इस तरह की चीज होती है, वो ऐड कर देते तो वो अमेरिकन ब्रेकफास्ट हो जाता है। इसके बाद है आपका लिनाय रूम है। लिनाय रूम क्या होता है, जिससे कि हम गार्डन व्यू देख सकते हैं। एक होता है बारमूडा होता है, बारमूडा प्लान भी जिसे हम बोलते हैं, यानी कि एक ऐसा रूम होता है जो आपका स्विमिंग पूल के साथ होता है और गार्डन व्यू भी दिखाई देता है, और उसमें 3 टाइम का खाना हमें मिलता है बारमूडा के अंदर। एक होता है फिर जंगल प्लान भी होता है, ये फूड के बता रहा हूँ। जंगल प्लान में क्या होता है, 3 टाइम का खाना आपको मिलेगा और प्लस में सफारी मिलेगी। सफारी ये गाड़ी होती है जो जंगल का व्यू कराती है, फॉरेस्ट में या नेशनल पार्क में, नेचुरल सेंचुरीज में जो टूरिस्ट जाते हैं वहां पर
देखते हैं, तो वो आपको सब चीजें वहां पर देखने को मिलेगी। देखिए, अकोमोडेशन की हम बात करें, ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, तो ये दोनों टूरिज्म इंडस्ट्री के पूरक हैं, ठीक है ना। तो अकोमोडेशन ट्रांसपोर्ट टूरिज्म सेक्टर टूरिज्म इंडस्ट्री जो है ट्रांसपोर्ट के बिना काम कर सकती है, और ना ही अकोमोडेशन के बगैर ये जो है चल सकती है, ठीक है। तो ये दोनों वो है। और टूरिज्म इंडस्ट्री को हम डायनामिक इंडस्ट्री बोलते हैं। डायनामिक इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है, ये टूरिज्म वर्ड एक है, लेकिन ये बहुत सारे सेक्टर से या इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है। जैसे कि डायनमो, एक गाड़ी के अंदर एक डायनमो होता है, सेल्फ डायनमो। वो डायनमो क्या करता है, जो हम गाड़ी में तेल डालते हैं ना, उस तेल को डायनमो जो है इलेक्ट्रिक पावर में कन्वर्ट करता है और पूरी गाड़ी को एनर्जी या पावर देता है। उससे हमारी लाइट भी जलती है, हेडलाइट भी जलती है, ब्रेक लाइट भी जलती है, ठीक है, इंडिकेटर्स भी ऑन होते हैं, म्यूजिक भी बजता है, और भाई स्टार्ट करते, चाबी लगा के स्टार्ट करते तो इंजन भी स्टार्ट हो जाता है, तो एक इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है। इसी तरह से टूरिज्म इंडस्ट्री भी डायनामिक इंडस्ट्री कहलाती है, जो कि हर इंडस्ट्री को अपने अंदर जोड़ के रखती है। चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री का आप नाम ले लीजिए, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री ले लीजिए, एकोमोडेशन इंडस्ट्री आप ले लीजिए, आप फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री ले लीजिए, आप इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री ले लीजिए, आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ले लीजिए, आप फर्टिलाइजर इंडस्ट्री ले लीजिए, आप कोई भी बिजनेस इंडस्ट्री निकाल के देख लीजिए। ऑल आर कनेक्टेड विद tourism, and tourism has plays a vital role to activate in these industries, और एक बहुत वाइटल रोल प्ले करता है इन इंडस्ट्रीज को एक्टिवेट या कनेक्ट करने में। तो आई थिंक कंटिन्यू रखें सर या फिर स्टॉप करें? सर कंटिन्यू रखिए। सर हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछिए बेटा। ये जो ताज होटल होता है इसे मुंबई की शान क्यों कहा जाता है? लाइक 5 स्टार होटल जैसे मिडिल क्लास के लिए होटल नहीं है, ऐसा क्यों माना जाता है सर? ताज होटल को मुंबई की शान? यस सर। ओके, देखिए, ताज होटल को मुंबई की शान या प्राइड ऑफ मुंबई इसलिए कहा जाता है, ये सबसे पहले एक तो हमारी इंडिया के अंदर सबसे पहले जो एकोमोडेशन या होटल्स में से एक स्टारिंग होटल्स में से पहला होटल खुला है। पहली बात तो ये है कि देश का सबसे पहला होटल मुंबई के अंदर है, और मुंबई को ये सौभाग्य मिला था कि इस होटल को वो रनवे कर सके। अब मुंबई की पहचान, मुंबई की जो पहचान है वो ताज होटल से है। वैसे तो उसकी बहुत सारी हिस्ट्री है, वो है, इसको फिल्म सिटी भी कहते हैं, मछुआरों का वो भी कहते हैं, समुद्र के किनारे बसा है, ये वो है। लेकिन एक एकोमोडेशन जो है ना, एक अच्छी चीज जो है, जो उसकी छाप छोड़ती है, उसका एक नाम छोड़ती है पूरे वर्ल्ड में, तो वो ताज होटल के कारण उठी गई है। और ताज होटल से वहां पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज भी डेवलप हुई है। आप इस चीज को थोड़ा ये सोच के देखिएगा कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज, एक जब कोई चीज डेवलप होती है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, तो उसके साथ बहुत सारी इंडस्ट्रीज भी डेवलप होती है। और ताज होटल जो है, एक्चुअल में ताज होटल की तरफ वो जो लाइटिंग्स वगैरह है, वो उसकी एक शान अलग से दिखाई देती है, और अलग से ही उसकी लोकेशन का पता चलता है, एज पर माई नॉलेज। किसी और बच्चे का कोई क्वेश्चन है? सर क्वेश्चन नहीं है सर, बस एक बार अकोमोडेशन की डेफिनेशन बता दीजिए। अकोमोडेशन की डेफिनेशन है अ प्लेस वेयर वी कैन फाइंड, ये देखिए इसमें ये दिखाई दे रहा है इसमें, अ प्लेस वेयर टूरिस्ट कैन फाइंड या वी कैन फाइंड फूड एंड शेल्टर provided he see in its fit position to pay for it। या इसको लिख सकते हैं, accommodation is a place where tourists या we can find food and shelter for by paying
by paying for our comfort. For our comfort. Yeah, we can easily find the food and beverage services with shelter.